Hello, good evening, students. Hello, good evening. Now today it is your practice class. So today we are going to start जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, that is the reproduction in bacteria from kingdom Monera. So today we are going to do practice. We are going to do practice few questions related to that only. Okay. पहले मैं कोई revision करा देती हूँ about the reproduction in bacteria that we had studied yesterday. Okay. Reproduction we had studied yesterday. Okay. Now in that it was asexual and asexual and sexual reproduction. In asexual reproduction we had studied binary fission. Conjugation, transformation, and third was transduction. Okay, student. Now yesterday we had studied reproduction. In the types of reproduction in bacteria, it is of two types. One is asexual and another is sexual reproduction. In the asexual reproduction, it was binary fission. Binary fission where a single bacteria, good evening. Now in single bacteria is there, now it is going to divide where the cytoplasmic membrane is going to divide. First karyokinesis will occur, then cytokinesis will occur. Okay, binary fission means अगर ये बैक्टीरिया है तो it is going to divide, ठीक है, बीच में सेप्टम बनेगा, लेकिन उसके लिए न्यूक्लियर मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट द न्यूक्लियर मटेरियल देयर इज नो एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो इसलिए पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन होगा, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. ओके, देन आफ्टर दैट बडिंग इज देयर. बडिंग इज व्हाट, कि बैक्टीरिया है, इसमें भी पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एंड देन the daughter, the progeny will be attached to the parent body and then it will be detached. ठीक है, जब वो fully form हो जाएगी तब उसके बाद it will get detached. That is in budding. ठीक है, एंडोस्पोर और सिस्ट फॉर्मेशन जो हम asexual reproduction में पढ़ते हैं, ये दोनों जो है ये है to escape from the unfavorable condition. जो unfavorable conditions होंगी उससे escape करने के लिए बैक्टीरिया क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके बाहर एक सिस्ट टाइप की एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, वही दिस इज द बैक्टीरिया. देन ओवर हियर the endosspore formation will occur, because I told you that nuclear material is the important thing, and when the favorable conditions will come, then it is going to rupture and the nuclear material with a few amount of cytoplasm will come out, and then it was going to gain the nutrition and enlarge itself. Okay, फिर है cyst formation. Okay, next in sexual reproduction we had studied about conjugation. Conjugation means a type of, ये सब एक टाइप के जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है. ठीक है, यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में conjugation which was discovered by Lederberg and Tatum. Okay, and over here F plus and F minus through sex pili, which is also called as conjugation tube. Conjugation tube के through जो genetic recombination है, genetic material है, उसका exchange होगा, and that can lead to possibility of two. That possibility can be either the both of them can be F plus, or it can, the F plus can become F minus and F minus can become F plus. Okay, these are the two possibilities of the progeny. Next is the transformation. Yes, one query is there. Ma'am, video is not coming. Okay. Video is not coming.
Ma'am, one student is saying that video is not coming. Hello. Okay, ma'am. Okay, students. Now, transformation. Transformation is another type of sexual reproduction in bacteria. Okay, and in transformation, what is happening? One bacteria is transforming to another type of bacteria. Now, one transformation मतलब एक टाइप के बैक्टीरिया दूसरे टाइप के बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल बताया था, विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंटीबायोटिक सेंसिटिव. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द टू. जैसे कि जो सेंसिटिव है वो रेजिस्टेंट, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, जीन्स है, दैट इज मेकिंग दैट बैक्टीरिया एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. अब हम वो पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स जो है, इफ दो सेट ऑफ जीन्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन एंटीबायोटिक सेंसिटिव बैक्टीरिया, so what will happen? That will also become antibiotic resistance. Okay, then third one is transduction. Transduction is a type of sexual reproduction where transduction is a type where bacteriophages are involved. ठीक है, bacteriophages ऐसे viruses होते हैं, those viruses which attack bacteria. हेलो. यस मैम. ओके मैम. शेयर. ओके. ओके. ओके, ठीक है, तो मैं वैसे ही कंटिन्यू करूं कि फिर लॉग आउट करके लॉग इन करूं फिर से? ठीक. ओके ओके मैम. ओके, नाउ yes, one query is there. Ma'am, could you please explain F plus again? Okay, yes, I can explain F plus. Now F plus, F stands for fertility. ठीक है, जैसे कि जो प्लाज्मिड होता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया हैज गॉट टू टाइप्स, वन इज द क्रोमोसोमल डीएनए एंड अनदर इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ओके, नाउ ओवर हियर, ठीक है, अगर कुछ सेट ऑफ जीन्स हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे अगर बैक्टीरिया में, जैसे मैंने कहा कि सपोज दीज आर दी XYZ है, सपोज आई एम सेइंग कि दीज टाइप की पूरा जीन्स होंगी. हेलो. यस मैम. ओके मैम. Okay, now we are saying that XYZ. Okay, now XYZ is the number of genes, जैसे कि जीन्स हैं जो कि F प्लस को डिनोट करेंगे और ये किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है. ठीक है, now so we will say that bacteria is F plus. Okay, and F minus is that bacteria कि जिसमें कि यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए, दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए which I had explained you is called as plasmid. अब वहां पर ये सेट ऑफ जीन्स जो XYZ हैं, that can lead to fertility, increase in fertility of any bacteria is absent. So we will call them as what? F minus bacteria. Okay, so when conjugation will occur, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में ये XYZ जो है, ठीक है, जो एक में प्रेजेंट थे, ए में प्रेजेंट थे, वो बी में जा सकते हैं. ठीक है, माइट भी ऐसा हो सकता है कि अगर ए बैक्टीरिया है और बी बैक्टीरिया है तो उसमें से XYZ मल्टीप्लाई करके या तो कॉपी बना के दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि इसमें यहां पर क्या होगा
कि वो मल्टीप्लाई ना करे और इसको छोड़ के उसमें चले जाए, बी में चले जाए, ठीक है। सो देन व्हाट विल बी द ऑप्शन, f प्लस क्या हो जाएगा, अब ये तो बिना XYZ पर्टिकुलर जीन्स के साथ हो जाएगा जो कि इसको f प्लस बना रहा था, सो इट विल बिकम f माइनस, और जो f माइनस था जो कि XYZ पर्टिकुलर जीन्स थे जो इसको f प्लस बना रहे थे वो f माइनस में चले जाएंगे। अगर f माइनस में चले जाएंगे तो यहाँ पे f माइनस क्या हो जाएगा, f प्लस हो जाएगा। अगर कॉपी बनाएगा वो XYZ की तो यहाँ f प्लस तो f प्लस होगा ही, f माइनस भी f प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों के पास वो पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन्स है जो कि उसको f प्लस बना रहे हैं, दैट इज द फर्टिलिटी फैक्टर। ओके, आई होप सो कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। नेक्स्ट वी कम बैक टू ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जहां पर की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है विद बैक्टीरियोफाजेस। Okay, now yesterday I had told you about the lytic and the lysogenic cycle, ठीक है। Now ट्रांसडक्शन एक तो होता है इसमें लाइटिक साइकिल, एक होता है इसमें लाइसोजेनिक साइकिल। ओके, नाउ लाइटिक साइकिल इज व्हाट, लाइटिक का मतलब होता है डेथ, मतलब यहाँ पे ये बैक्टीरियोफाज है, this is the bacteriophage and this is the genetic material inside it, and this is the bacteria. This bacteriophage is going to infect this bacteria. इस बैक्टीरिया के पास क्रोमोसोमल डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। येस्टरडे हमारा सेशन एंड हो गया था लेकिन हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ था, ठीक है, तो मैं उसको भी कंप्लीट कर रही हूँ अभी, सो दैट आज हमारा जो रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया वो हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब लाइटिक साइकिल में क्या होगा कि यहाँ पे बैक्टीरियोफाज इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। व्हेन इट विल इन्फेक्ट तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, इट इज गोइंग टू कम इनसाइड द बैक्टीरिया एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू अकर, ठीक है। नाउ इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, फर्स्ट इज टेम्परेट, विरुलेंट, generalized and specialized. Now you will say ma'am has told so many types, लेकिन ये just short terms हैं, short definitions हैं इनकी to differentiate them, ठीक है। as they are present in Newton, ये Newton में है, it is in your syllabus, so you have to study them, okay। first of all temperate और virulent ये कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइटिक साइकिल में क्या होता है, देयर अकर्स द डेथ ऑफ बैक्टीरिया। लाइटिक का मतलब होता है मारना, यहाँ पे बैक्टीरियोफाज जो है एक्चुअली में ये जो लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल होती है ये हम लाइफ साइकिल और बैक्टीरियोफाजेस में ही ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आ रहा है, इस बीच में बैक्टीरिया इज ऑल्सो मल्टीप्लाइंग। But over here in lytic cycle there occurs the death of the bacteria. The bacteria is being killed by the bacteriophage. Okay. Now temperate और virulent में ये होगा कि virulent में all of a sudden जैसे ही बैक्टीरियोफाज उस बैक्टीरिया को अटैक करेगा, it is going to kill that bacteria. Okay. And in टेम्परेट इट विल टेक अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, और जब वो शॉर्ट टाइम लेगा वहां पे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर सकता है एंड इट विल मल्टीप्लाई एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन विल अकर इन दोज बैक्टीरिया। ओके, नाउ जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, जैसे कि ये न्यूक्लियर मटेरियल हमने सर्किल में दिखाया and this nuclear material is in circle, ठीक है, मैंने सर्कुलर दिए उसमें दिखाया है। Now if I am saying कि ये ब्रेक कर रहा है, it is breaking and I am labeling as A, B, C, D, E, F,
GHIG। और जब ये टूटेगा तो ये A B C D E F ऐसे जाएगा, J तक जाएगा। और जब ये रिकम्बाइन करेगा तो जरूरी तो नहीं है कि ये इसी ऑर्डर में रिकम्बाइन करे, हो सकता है कि इसका जो कॉम्बिनेशन हो ये अलग बने, हो सकता है कि A F H C E B I ना। तो जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है कि वो एक ही उसमें आए, देयर कैन बी चेंजेस ऑल्सो, ठीक है। अब जनरलाइज और स्पेशलाइज टाइप की जो हमारी जो यहाँ पे लाइफ साइकिल ट्रांसडक्शन में है, उसमें ये है कि जनरलाइज्ड में ये होता है कि वो टोटल नंबर ऑफ जो जीन्स हैं उसमें से वो सारे जीन्स जो हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, उन सबको एक्सेप्ट करके और वो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करेगा तो ऑल ऑफ देम इज गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑफ द बैक्टीरियोफाजेस, ठीक है। लेकिन इफ फॉर स्पेशलाइज्ड में ओनली फ्यू काइंड ऑफ जेनेटिक जीन्स और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस विल बी टेकन। मतलब ये है कि अगर हमने कहा कि ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ठीक है, बैक्टीरियल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड है और ये फाज का है, ठीक है, तो जनरलाइज्ड में ये सारे जो जीन्स हैं, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, ये सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनका कोई भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन स्पेशलाइज्ड टाइप में क्या होगा, माइट बी H, माइट बी I, ठीक है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड जीन ही उसमें आएगा और वो ही एक्सेप्ट होगा, and that is going to multiply, that is going to lead to genetic recombination. Okay, this is the difference between generalized, specialized, temperate and virulent. Okay, fine. So these are the different types which I had to told you. One more term is there, lysogenic cycle में, लाइटिक साइकिल तो ये हो गई, लाइसोजेनिक साइकिल में एक आता है वर्ड एपिजोम, एपिजोम, एंड वन वर्ड इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड तो आपको क्लियर होगा, प्लाज्मिड तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ एपिजोम और प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड एक ऑटोनॉमस थिंग है एंड दैट कैन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, ओके। बट एपिजोम क्या है? एपिजोम हमारा क्रोमोसोमल डीएनए जो है उसके साथ एक्स्ट्रा जीन्स जो है, ये क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, यहाँ पे एक्स्ट्रा जीन्स जो है वो आएंगे, एड ऑन होंगे ड्यूरिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई, ओके। एंड व्हेन इट इज गोइंग टू मल्टीप्लाई तो यहाँ पे इसको हम एपिजोम कहेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिजोम एंड प्लाज्मिड? एपिजोम रेप्लिकेट्स, मतलब रेप्लिकेट, अगेन अगेन आई एम टेलिंग यू, रेप्लिकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। एपिजोम रेप्लिकेट करेगा विद द क्रोमोसोम, प्लाज्मिड इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। एपिजोम आपका यूकैरियोट्स में भी मिल सकता है, प्रोकैरियोट्स में भी मिल सकता है, प्लाज्मिड सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही मिलेगा, एज इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया, ओके। नाउ थिंग्स आर क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, आई थिंक सो, ठीक है, इन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। Now, in fill in the blanks,
First question, in bacteria nucleoid spindles are dash during cell division. So it will be spindle fibers are absent. Okay, spindle fibers are absent during cell division. Okay, next, in bacteria dash are extensions of plasma membrane which initiates DNA replication and septum formation during cell division. Extensions of what? Mesosomes. ठीक है, सेल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्या होता है? मीजोसोम, एज आई टोल्ड यू इन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. Next question, the most common method of reproduction in bacteria is what? Is fission. Binary fission is the most common method of reproduction. Next, during conjugation F factor is commonly called as. ठीक है, now F factor is commonly called as the fertility factor. Okay, यहाँ पे F factor एपिसोम भी हो सकता है. ठीक है, वाई सो? क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर है दैट कैन कॉन्जुगेट, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बाइन कर सकता है विद द क्रोमोसोमल डीएनए, आल्सो विद द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट बैक्टीरियोलॉजिस्ट. एंटोनी वैन लीवनमेनहोक. ओके, नेक्स्ट, एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज अ प्योर कल्चर? अ प्योर कल्चर विच कंटेन्स वन स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया. जैसे कि सपोज हमें किसी पर लैब में रिसर्च करनी है, सपोज ई कोलाई पर हमें करनी है, तो हमारा जो पेट्री डिश होगा, ठीक है, या तो हम जो उसको वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, ठीक है, और हमें क्या चाहिए? उसका प्योर कल्चर चाहिए, बिकॉज वी नीड ओनली दैट पर्टिकुलर species of that bacteria, that is called as pure culture. What is transduction? Transduction is a process of sexual reproduction in bacteria, or we can say as the genetic recombination. Genetic recombination where bacteriophages take part. Bacteriophages के साथ genetic recombination होगा nuclear material के साथ. Okay. Next question. Describe briefly various methods of reproduction in bacteria and also the mechanism of transformation. Okay, I had discussed with you all. ठीक है, briefly various methods of reproduction होगा in bacteria. तो इसमें first you are going to draw the chart, flow diagram जो मैंने इससे पहले भी draw किया था, asexual and sexual reproduction, and you will explain a bit. और उसके बाद you are going to explain the mechanism of transformation in detail as I had discussed with you yesterday. Okay, next, distinguish between lysogenic and lytic cycle in the life cycle of a virus. ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस पे एम्फेसिस है. यहाँ पे बैक्टीरियोफाइलस, बिकॉज इन लाइटिक साइकिल it kills the bacteria, that's why. Okay, so here you have to explain all these lytic, lysogenic, episome, plasmic, temperate, virulent, generalized, specialized, these all terms we are going to explain. Next, difference between conjugation and transformation. Conjugation, where what happens to the sex pili? Conjugation tube is formed, and in transformation a new form of bacteria is formed. Okay, this is the major difference. Transformation where the cell free naked DNA, जो naked DNA होगा, that उसमें क्या होगा? There will be transformation occurs and a different form. और conjugation में सिर्फ और सिर्फ कुछ particular जो nucleotide sequences है, a change is going to occur. Okay, next. Conjugation, transformation, then transformation and transduction. Transformation and transduction. In transduction, bacteriophages plays an important role. Okay, and in transformation, what happens? A new form of bacteria is formed, discovered by Griffith. Okay, and over here antibiotic sensitivity and antibiotic resistant है, उन दोनों का हम एग्जाम्पल, ये तो virulent और नॉन virulent का भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें. ओके, रिप्रोडक्शन पे एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं बनेगा.
conjugation, transformation or transduction individually पे 3 marks का question. Without diagram your answers will be incomplete. Okay, so आपको डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है. ये हैबिट इनकलकेट कर लीजिए कि जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन है. विदाउट डायग्राम अगर आप सोचें कि आपने आंसर्स बहुत लिख दिया है, मैंने तो 2 पेजेस में इसको एक्सप्लेन किया था, बट डायग्राम्स आर मोर स्कोरिंग and so better you draw the diagram with a bit of explanation and better with the flow diagram, so it will be better for you. Okay, so students, today we have discussed the reproduction in bacteria. ठीक है, प्रैक्टिस क्लास इट वाज. जो हमने कल पढ़ा था उसी के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज. Now tomorrow I have also given you the notes of economic importance of bacteria. Please go through them, क्योंकि उसमें आप बैक्टीरिया के you are going to learn the new names. ठीक है, और धीरे धीरे आपको हैबिट. So read those names loudly. Okay, so tomorrow we are going to discuss the economic importance of bacteria. Okay students, thank you. One query is there. Please, can you send bacterial reproduction to? Yes, I will send it to you. I will send you the notes of that also.